everyone, it's me, your Manu Issue, and welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes. So, in this video, I'm going to do Woodwind Company questions. So, if you're watching my video for the first time, don't forget to subscribe my channel and share it among your friends. Now, you can ask your doubt with me through Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, wherever you feel easy, and the link a detail about the ID can be found in the description box below. So now, in the previous video we have done with variant company question. Now let's move ahead. So यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द फ्लूइड कंपनी बीइंग ए न्यू ऑडिट क्लाइंट ऑफ वुडविंड कंपनी वुडविंड एंड को. So scenario क्या है? It is the 1st July 20x5. Again, date is important. You are in the audit manager in the Woodwind and company. You are planning the audit of fluid company. Okay, so हमारा जो audit firm है उसका नाम है Woodwind and Co. And जो company का audit कर रहे हैं उसका नाम है fluid co and which is a new client. So यहाँ पे हमारा ध्यान देना है कि new client है कि existing client है. Okay, because दोनों के केस में our risks will be different. So Flute company is a large mobile phone company. So basically किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है? ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन कंपनी which operates a network of stores in a country across Europe. You have been provided with the planning notes from an audit engagement partner following his meeting with the finance director. Okay, means you are at the planning stage. During the year, the company introduced a bonus based on the sales for its sales team, and the bonus target was based on increase in number of customers signing up for 24-month phone line contract. This strategy has been successful and revenue has increased by 15% compared to 20x4. In particular, there has been a significant increase in sales in the May and June 20x5. Technology company which supply Fluidco with mobile phone release a new version with a updated feature every 12 months. When a new phone are released, Flute and Coke offer significant discount on older version. You are undertake a preliminary means planning phase, an analytical review of draft financial statement and have been provided with the following information. और नीचे दिया हुआ है overvaluation of the inventory and receivable are considered to be significant risks for this year audits. So what's the requirement of the 56 number question? Which of the following statement is true in relation to the fluid company being a new audit client of the Woodwind Co. ठीक है, अब इसमें से कौन सा हमारा मतलब लाइक एक रिक्स हो सकता है इन केस ऑफ न्यू क्लाइंट को ऑडिट करते वक्त. सो देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन कहता है इनहेरेंट रिस्क इज इंक्रीज एज द फर्म हैज़ नो क्यूमुलेटिव नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ द फ्लूइड को. ऑब्वियसली वुडविंड कंपनी के लिए वो जो क्लाइंट है फ्लूइड को वो न्यू है, उसके पास प्रायर नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है. उस केस में क्या हो सकता है, कंपनी को मीन्स ऑडिट फर्म को हैव टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, उसका इन्वायरमेंट एंड द इंडस्ट्री इन विच दे ऑपरेट. सो हालांकि यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क इंक्रीज होगा बिकॉज दैट्स अ रिस्क ओनली अंडर विच इज इन्फ्लुएंस बाय द ऑडिटर. ठीक है, इनहेरेंट रिस्क इज इन्फ्लुएंस बाय द क्लाइंट. तो यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क होता है. इन दैट केस दिस ऑप्शन वाज करेक्ट, बट यहाँ पे है नहीं तो ये फॉल्स है. The auditor may not be competent to perform the audit and should consider resign. This should be considered as the last option. अभी हम लोग प्लानिंग स्टेज में ही है. The auditor should contact the previous auditor to ask if there is any professional matter which they should be aware. अब यहाँ पे हालांकि हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन था करेक्ट था, वो सोच के टिक लगा देंगे यहाँ पे, बट ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ऑडिटर से क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल मैटर जो मतलब लाइक ऑडिटर कांटेक्ट कर रहा है प्रीवियस ऑडिटर को टू आस्क पूछ रहा है इफ देयर इज एनी प्रोफेशनल मैटर विच दे शुड बी अवेयर. अब प्रोफेशनल मैटर मीन्स लाइक इथिक्स की बात हो सकता है आपका, और क्या हो सकता है कॉम्पिटेंस. ये सब हम लोग क्या करेंगे लाइक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले सोचेंगे, पहले देखेंगे, नॉट आफ्टर एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट. अभी हम लोग प्लानिंग स्टेज पे इट मीन्स वी हैव एक्सेप्टेड. सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है. सो बच गया लास्ट, ऑडिटर विल नीड टू इंक्रीज द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसीजर परफॉर्म ड्यू टू इंक्रीज रिस्क. ऑब्वियसली अब न्यू क्लाइंट है, यहाँ पे हम लोग को इन्वायरमेंट समझना होगा, इसीलिए हम लोग को अपना प्रोसीजर इंक्रीज करना होगा बिकॉज रिस्क यहाँ पे हाई है. सो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसीजर हम लोग को यहाँ पे हाई रखना होगा. ओके.
Okay, 57. Which of the following is an appropriate explanation of a audit risk relating to the bonus of fluid company sales team? अब बोनस के बारे में ऊपर क्या कुछ कहा गया था? आई थिंक इट वाज इन सेकेंड पैराग्राफ, नहीं थर्ड. During the year of the company introduced a bonus based on sales for his sales team. ठीक है, and the bonus target was based on increasing number of customers signing up the for 24-month phone line contract. So यहाँ पे क्या कहा गया है? Okay, so which of the following is an appropriate explanation of audit risks relating to the bonus for the fluid company sales team? So bonus किसी से bonus जो है हमारा ये बेस्ड है सेल्स पर, वो भी सेल्स टीम के लिए. और बोनस टारगेट क्या था? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर साइनिंग अप फॉर 24 मंथ फोन लाइन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, और स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल भी हुआ, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज भी हुआ. सो यहाँ पे हमारा एप्रोप्रिएट ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है देयर इज इंक्रीज. अब हालांकि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स देयर माइट बी ओवर स्टेटमेंट, ये हमारा सोचना पड़ेगा. ठीक है, वहाँ पे बोला गया ना कि इस बोनस स्कीम की वजह से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है. सो वी नीड टू थिंक यहाँ पे हमारा लाइक ओवर स्टेटमेंट हुआ है रेवेन्यू में एज अ ऑडिट रिस्क के. तो देर इज इंक्रीज इन रिस्क ऑफ रिडक्शन इन द प्रॉफिट फॉर द कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ इरिकवरेबल डेट. ये बिजनेस रिस्क की बात कर रहा है, एंड बिजनेस रिस्क एंड ऑडिट रिस्क इज क्वाइट डिफरेंट. आई मस्ट से यू गाइज आर अवेयर ऑफ दिस थिंग. सो ये बिजनेस रिस्क एक्सप्लेन कर रहा है, सो दिस इज नॉट ए लाइक एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क. सेकेंड ऑप्शन कहता है देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ एप्रोप्रिएट कट ऑफ ऑफ रेवेन्यू. अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो रेवेन्यू है वो ओवर स्टेटमेंट हो रहा है कि नहीं? तो ओवर स्टेटमेंट के केस में क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग कट ऑफ को देखते हैं, कट ऑफ हमारा कितना है. सो ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज ऑफ इनएप्रोप्रिएट कट ऑफ ऑफ द रेवेन्यू, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ओके, सो उसके बाद क्या है? सी ऑप्शन, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू. मैंने पहले ही बोला ये तो ओवर स्टेटमेंट का केस है, ये तो बात आता ही नहीं है. देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर फॉलोइंग डायरेक्ट कन्फर्मेशन ऑडिट टेस्टिंग. इसका और सेल्स से या बोनस से कोई कनेक्शन ही नहीं है कि नहीं? सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, okay, so which of the following statement provide the calculate the following ratio for the both years? So it's quite easy, you can do it. ये हम लोग FA से करते आ रहे हैं, ये सब चीज़ें PA में भी किया हम लोग ने, FR में भी किया है. So I think you guys are been familiar or you can calculate. Okay, which of the following is not appropriate audit response to the significant risks relating to the inventory and receivable? अब ऊपर में कहा गया था कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर दिस ईयर. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है एक्सटेंड कट ऑफ टेस्टिंग. अब ये हमारा अंडर को भी देखता है, ओवर स्टेटमेंट को देखता है. यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ओवर की. सो ये हम कह सकते हैं नॉट एप्रोप्रिएट ऑडिट रिस्पॉन्स. ठीक है, और बाकी का सारा लाइक ऑप्शन वी कैन कंसिडर इट्स एप्रोप्रिएट ऑडिट रिस्पॉन्स. ठीक है, रिव्यू कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री लेबल. ठीक है, उसके बाद क्या है? डिस्कस स्लो मूविंग इन्वेंट्री आइटम विद द फाइनेंस डायरेक्टर, जिसकी वजह से क्या होगा? अब स्लो मूविंग है तो हमारा क्या होगा? ऑब्वियसली हमारा एनआरवी कम हो सकता है कॉस्ट से, तो उस केस में इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज एप्रोप्रिएट ऑडिट रिस्पॉन्स. परफॉर्म पोस्ट ईयर इन सेल्स इनवॉइस टेस्टिंग. अब लास्ट में देखेंगे एनआरवी कॉस्ट क्या हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके अकॉर्डिंग ये सब हम लोग एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मानेंगे इन्वेंट्री केस में. सेम गोज फॉर द रिसीवेबल्स. ठीक है, सो 60. Which of two of the following statement best describe the purpose of using analytical procedure during the planning stage of fluid company audit? Okay, so to help the firm over a conclusion on the financial statement. ये basically आपका final review की phase के में आता है, not at the planning stage. So ये incorrect. To obtain relevant and reliable audit evidence.
ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर या फिर फाइनल स्टेज जब ऑडिट का करते रहते हैं उस टाइम ही आता है आपका, नॉट एट द प्लानिंग स्टेज. सो बच गया लास्ट टू, एंड दिस विल ऑब्वियसली बी द रीज़न और पर्पज ऑफ यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज. ठीक है. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माई चैनल.